Our guest of the day is Professor Rajkumar, as you already know. So he's Vice Chancellor of Punjab University, Chandigarh. So our sir already discussed about him. You already know many things. He's very renowned scientist, and still I want to introduce little bit so more, so we can know little more about him. So Professor Rajkumar is distinguished academician, researcher, and educational administrator. He is currently the Vice Chancellor of Punjab University, Chandigarh. He completed his PhD from Banaras Hindu University and DLED from University of Lucknow. He brings with him a rich mixture of professional integrity and administrative experience. Professor Rajkumar has been actively engaged in teaching, research, training, and consultancy in management field for more than 3 decades. He has been director, dean, and head of Institute of Management Studies, Banaras Hindu University, Banarasi. He has wide exposure in administration and day-to-day functioning of the university. As the coordinator, technical cell, and the vice chancellor at BHU, he played a key role in streamlining the administration and bringing more transparency in the system. His contribution helped the university in achieving new heights. He has been pioneer in the furtherance of industry-academia relations and entrepreneurship development. He has been instrumental in starting new courses, organizing various MDPs, FDPs, and training and skill development programs for corporate and students at Institute of Management Study. He has initiated the establishment of Atal Incubation Center at BHU. Under his leadership, various startups were initiated. Professor Rajkumar has mentored more than a dozen PhD students, published many books, and published more than 100 research papers in the Journal of National and International Repute. He has been on the editorial board of more than 24 international and national journals, such as American Journal of Industrial and Business Management, International Journal of Advanced Scientific Research and Development, BHU, Management Review, Finance India, etc. He is chairman of various decision-making bodies of most prestigious institutions such as Postgraduate Institute of Medical Education and Research, State Higher Education Council, RUSA, Regional Innovation and Knowledge Cluster, Regional Advisory Committee of Kendriya Vidyalaya Sangathan, Standing Committee of SCST, UGC SAF Program, UGC, CASP of different department of Punjab University. He is member of Indian Institute of Public Administration, New Delhi, Administrators Advisory Council, Chandigarh, Punjab State Council of Science and Technology, member of governing body of IUCAA, Pune, on board of governors of Punjab Engineering College, Chandigarh, member academic council of various universities and chairman of number of UGC expert committees. As accomplished teacher and educationalist, administrator, his focus has always been on quality. Under his dynamic leadership and guidance, Punjab University has been adjudged as best university in the country by US News and World Report ranking 2019. In NIRF ranking 2019, University ranked 21st position, and University Institute of Pharmaceutical Sciences ranked second among the pharmacy institutions in the country. It is a credit to his efforts that innovation and incubation has got a major trust in the university, which is reflective in Punjab University achieving 9th spot in ARIIA, that is Atal Ranking of Institution on Innovation Achievements. Ranking list has released by this MSRD in month of March, and this is in 2019 again. Because of his consistent efforts, university has been sanctioned grant of a new girls hostel, expansion of human resource development center, and for setting up a center for academic leadership and education management. Sir, we welcome you for this program, and we are waiting for hearing your this encouraging and motivating word. Sir, please. Director of the institute, esteemed director of the institute, and I can see the a number of keynote speaker guests from the different industry organization and the research institutions. A very good number of the participants from the different
part of the country as well from different institutions, students, and ladies and gentlemen. First of all, good morning, each one of you. And I am very happy that you have organized a very innovative type of this workshop for 5 days. And today is the last day of this webinar workshop. Then I think you people have a lot of input for the different domain of knowledge. Actually, I just want to tell a few words about the director, Professor Patnaik. Professor Patnaik is really, when I means I have taken the charge of this university years back, then he was the person, he told a lot about the academic system that this the region has. And at the same time, he also given me a lot of ideas, a lot of say sharing experiences with the Creek institution that we have, and fortunately we are actively associated with that. So for that purpose, I can tell you the NITER is a very vibrating institution, and again we have started a number of activities, collaborative activities with this NITER as well as other institutions. Recently, we are means introducing the collaborative type of innovative courses. That is the main initiation of Professor Patnaik. Credit goes to him, and I think that would be very entirely different type of courses that we are going to launch in the new academic session. Yes, the theme that you have selected is a really very wonderful in the sense कि आज जो है आत्मनिर्भर भारत की बात जो है हर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और हर प्लेटफॉर्म से निकल करके आ रहा है। तो जरूरत ये है कि हम लोग कम से कम सामान्य एकेडमिशियन और जो हाईली रिप्यूटेड एकेडमिशियन और पॉलिसी मेकर्स हैं, सारे के सारे इस बात पर उनका कंसर्न हो रहा है कि आत्मनिर्भर भारत को बनाने की जरूरत है। हम कहीं नंबर 1 पर हैं, कहीं नंबर 2 पर हैं, कहीं नंबर 4 या 5 पर हैं। तो हमारी इतनी जबरदस्त विजिबिलिटी हो गई है पूरे विश्व में कि पूरा विश्व जो है अब हमको जो है स्वीकार करने लगा है। स्वीकार करने का मतलब यहाँ पर ये है, स्वीकार्यता तो पहले भी थी, अब उनको ये लग रहा है कि भारत के बिना, भारत जैसे विशाल देश के बिना जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते, और ये उनकी अब शायद मजबूरी भी हो गई है कि वो हमारे साथ आवें। और ये सब चीजें जब हम आपसे यहाँ शेयर कर रहे हैं, इसका सीधा का सीधा रिफ्लेक्शन यही है कि ये सब चीजें तमाम सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आ रही हैं। Everybody is concerned about the criticality of this COVID virus, and everybody would be agreed upon it is not going in very short term. Its life is still unpredictable, and this corona family is a very having variety in coming years. It will come in a more fatal way, or it will come in a more diversified way. So what happens out of that, we just set up our mind कि हमको अब न्यू नॉर्मलसी में काम करना है, न्यू नॉर्मल में काम करना है। ये बहुत ही शुभ संकेत है। हम मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, तो इस जो ये क्रिटिकल पीरियड जो इसमें मानवता के एग्जिस्टेंस के लिए जो आया हुआ है, ये सारी की सारी चीजें हमें अब आप माफ करेंगे, ये हम एक गॉड गिफ्ट के रूप में मैं समझ रहा हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आप ये देख रहे हैं कि हम और प्रोफेसर पट्टायक भी हमारे बात से एग्री होंगे कि इस तरह के प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने में हम लोगों को करीब जो है कभी 6 महीने हो जाते हैं। और आई एम श्योर कि इस तरह का प्लेटफॉर्म हम जो है, हम हो या कोई भी हमारे जैसा एकेडमिक लीडर है, अगर वो चाहे तो हर हफ्ते क्रिएट कर सकता है, बिकॉज इट इज जस्ट द बूम ऑफ दिस टेक्नोलॉजी दैट हैज गिवन। शायद कोरोना न आया होता तो आज हम इतने लोगों से जुड़ रहे हैं, इतने लोगों को वाइस चांसलर हुए, डायरेक्टर हुए, मिनिस्टर्स हुए, पॉलिसी मेकर्स हुए, एंटरप्रेन्योर्स हुए, क्या ये संभव था? तो देखिए, ये जो है
प्रकृति का, ये ईश्वर की जो है कृपा होती है। अगर एक तरफ वो बहुत बड़ा संकट देता है, तो उसका जो दूसरा पहलू होता है, वह बहुत बड़े वरदान के रूप में होता है। हम आप आदमी हैं, हम आप ये सोचते हैं कि नहीं हमारे ऊपर पहाड़ टूट गया, सब खत्म हो गया। नो, इट इज़ पेसिमिज्म, इट इज़ द नेगेटिविटी, इट इज़ द लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस दैट वी हैव। हमको यही तो समय है कि जब हमको अपने कोई एकदम नए जीवन के साथ शुरू करना है। आपके खाने-पीने की व्यवस्था में एकदम परिवर्तन हो गया होगा। आपके सोने, रहने, उठने, बैठने, व्यवहार में एकदम परिवर्तन हो गया होगा। लेकिन सारी चीज़ें चल ही रही हैं ना, प्रकृति तो चल रही है ना, ऑक्सीजन की मात्रा जो है बढ़ ही रही है ना। तो लेट अस टेक एवरीथिंग इन ए वेरी पॉजिटिव वे। अब हम यहाँ पर केवल मैं अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको देख रहा हूँ, वो मैं इसलिए देख रहा हूँ, इसका एक बैकग्राउंड ये है कि हमारी डेमोग्राफी जो है वह विश्व में नंबर 1 पर है। वी आर वेरी डेमोग्राफिकली वी आर वेरी स्ट्रांग, नंबर 1। नंबर 2, वी आर हैविंग द चीपेस्ट लेबर इन द वर्ल्ड। नंबर 3, वी आर द ह्यूज मार्केट, हाईएस्ट मार्केट। कोई देश कितना भी डेवलप्ड हो, कितना भी जो है रिसोर्सफुल हो, चाहे जो है इतनी मोर देन 37 की ट्रिलियन इकोनॉमी जो है यूएसए है, क्या यूएसए जो है अपनी सारी खपत कर सकता है? उसका जो है इकोनॉमी बिना भारत के सहयोग के चल सकता है? अगर उसको कोई चीज बेचनी है तो भारत जैसे विशाल जो है मार्केट की जरूरत है। चाइना हमसे पॉपुलेशन में ज्यादा है, नंबर 1 पर है, लेकिन अगर मार्केट की बात होगी, क्योंकि हम मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, हम इसको केवल अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। तो ये बात तो इस्टेब्लिश है कि हमसे बड़ी कोई मार्केट नहीं है, आपको हमारे यहाँ आना ही पड़ेगा, नंबर 1। अब जब आपको हमारे यहाँ आना पड़ेगा, हमारी मार्केट इतनी बड़ी है, तो अब यहीं से हमारी शुरुआत हो जाती है। और हर प्रोडक्ट बनाने में हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट पार एक्सेलेंस है। अगर कहीं कोई कमी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं, कोलैबोरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग तैयार कर सकते हैं। और हम पंजाब यूनिवर्सिटी में जब से आए हैं, तब से हमारा सारा फोकस रिसर्च और इनोवेशन पर है। आपको जान के खुशी होगी कि मैं 15 करोड़ का एक एक इंक्यूबेशन यूनिट में तैयार कर रहा हूँ। दैट वुड बी वेरी वेरी मींस सोफिस्टिकेटेड टाइप ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर। और उस सेंट्रल इंक्यूबेशन सेंटर को मैं 6 प्री इंक्यूबेशन यूनिट से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। आप आइए हमारे यहाँ रा आइडिया लेके भी आप आएंगे, तो मैं आपका जो हमारा प्री इंक्यूबेशन यूनिट जो है वो आपको तुरंत जो है वेलकम करेगा, वहां आपको जगह देगा। अगर आपके आइडिया जो है थोड़ा चल निकलने वाली स्थिति में है, तो हम आपको सेंट्रल इंक्यूबेशन जो सेंटर है हमारा, वहां पर हम कनेक्ट करेंगे। इतना ही नहीं, हमारे पास दर्जनों इंडस्ट्री के कोलेबोरेशन हो रहे हैं, हुए हैं, हो रहे हैं। तो आप इस बात की चिंता अब छोड़ दीजिए कि जो हमारा प्रोटोटाइप निकलेगा, जो हमारा जो है प्रोडक्ट निकलेगा, वो बिकेगा कहाँ? ऐसा अब वो चिंता नहीं करनी है, बिकॉज आई नो दी स्टार्टअप एक्टिविटीज only could be successful until unless you are sure about their market, about their supply chain, about their demand, about their price, about their quality. तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब यूनिवर्सिटी का हो, और जहां पर नीटर जैसे इंस्टीट्यूशन हो, तमाम सारे 13 इंस्टीट्यूशन है हमारे, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी वगैरह जो है अच्छी खासी यहाँ पर है। अगर हम सारे लोग मिलकर के काम करें, तो ये नॉर्थ बेल्ट जो है वो दैट कुड बी वन ऑफ द मींस स्ट्रेटेजिक पॉइंट। अब दूसरा पक्ष मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब ये इनक्यूबेशन एक्टिविटीज या स्टार्टअप एक्टिविटीज कहाँ कहाँ पर होने वाली, क्योंकि मैं आपको बैकग्राउंड ये बताया था कि सब चीज चेंज हो गया है, सब चीज आईटी बेस्ड हो गई है। इंक्यूबेशन एक्टिविटी या स्टार्टअप एक्टिविटीज का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनने जा रहा है प्रियॉरिटी एरिया वाइज, वो हो रहा है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्यों ऐसा हो रहा है?
अभी माननीय प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का हाईएस्ट पैकेज डिक्लेयर किया है ये लॉकडाउन और अनलॉकडाउन के दरमियान। और आपको ताज्जुब होगा कि 1 लाख करोड़ रुपए केवल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट सेक्टर पर ही खर्च किया जा रहा है। अब आप से समझ सकते हैं हमारे लेबर, अच्छा दूसरा जो पक्ष है कि हमारे लेबर जो माइग्रेट हुए हैं, अब आप ये यकीन नहीं मानिए कि सारे के सारे वहां नहीं जाएंगे। अगर वहां नहीं जाएंगे तो निश्चित रूप से वे नए कॉन्फिडेंस के साथ, नए अनुभव के साथ तमाम सारे एमएसएमई जैसे इंटरप्राइजेस शुरू करेंगे। अब यही आपका रोल है। अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरियाज और एग्रीकल्चर एरिया में जो है जो कर रही है, थोड़ा सा उसमें इम्पेटस आ जाए तो यकीन मानिए कि हमारी ये लोकल टू ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रांग रूप में इमर्ज आउट होगी। और यही हमारा उद्देश्य है। आत्म भारत तो यही है ना। हमारी आज भी जनसंख्या जो है मोर देन 70% या 60% जो है गांव में रहती है। एग्रीकल्चर आज भी हमारा तमाम सारा साइंस टेक्नोलॉजी मैनेज के बाद भी हमारा एग्रीकल्चर मेन स्टे है। तो कहने का है कि आत्म भारत की, आत्मनिर्भर भारत की जो दिशा और दशा, ये दोनों गांव और ग्रामीण क्षेत्र से ही शुरू होगी, एग्रीकल्चर से ही होगी। और थैंक्स कोरोना अगेन कि उसने ये दिशा हमको दी है। अभी तक हम कभी जो है एग्रीकल्चर पर जाते थे, कभी इंडस्ट्री पर जाते थे, कभी मिक्स्ड वाले कॉन्सेप्ट पर जाते थे, कभी जॉइंट वेंचर वाले कॉन्सेप्ट पर जाते थे। इसने बता दिया कि नहीं, लेट अस स्टार्ट, जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दी लोकल टू दी ग्लोबल। अब यहाँ पर जो है प्रोडक्ट जो है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, ये आपका बहुत बड़ा अम्ब्रेला होगा। और इसी के अंतर्गत आपको जो है संभावनाएं तलाशनी है, जिसमें पहली अपॉर्चुनिटी आपकी जो है वह मेडिकल साइंसेस की होगी। क्योंकि क्योंकि ये जो चीजें चल रही हैं, इसमें मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल जो है जो आपका जैसे पीपी या किट वगैरह वाली बात हुई। आप देखिए पीपी किट हमारे यहाँ बनता ही नहीं था, और आज इसका लाखों में प्रोडक्ट हो गया है। मास्क हमारे यहाँ जो है घर घर में बनने लगा है। ये तो अपॉर्चुनिटी ही है ना, ये तो रोजगार ही दे रहा है ना। हाँ, रोजगार की शिफ्टिंग जरूरी है। इसके अलावा एक अंतिम बात मैं करके अपनी बात वाणी को विराम दूंगा कि आने वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो है फोकस एग्रीकल्चर पर तो होगा ही, एलाइड पर होगा ही, मेडिकल साइंसेस पर होगा, इंजीनियरिंग जो हमारा आईटी जो होगा वो बहुत ही स्ट्रांग होने जाना है। उसमें तमाम सारे इनोवेशन वगैरह होंगे, इनोवेशन और रिसर्चेस। तो हमको अब जरूरत ये है कि एक इंटीग्रेटेड और कंसोलिडेटेड एफर्ट करने की जरूरत है, जो कि कोलैबोरेशन से ही संभव है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः जो है सारे जो हमारे यहाँ पर अतिथि आए हैं उनका मैं पुनः तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, और डायरेक्टर को विशेष रूप से जो है प्रोफेसर पटनायक को कि हमें उन्होंने यहाँ पे एक मौका दिया आप लोगों से बात करने के लिए। हाँ, एक चीज मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा अंत में कि इस सारे परिप्रेक्ष्य में जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने जो है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने जो 34 साल बाद नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, अप्रूव हुई है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है कल परसों, उसका अब बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है। वो खुद ही जो है कि भारत के सशक्तिकरण में और आत्मनिर्भर भारत के में उसका बहुत बड़ा योगदान। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। Thank you very much, sir, for your nice, encouraging, motivating words. And you this nicely highlighted this collaboration in many areas, and you discussed the opportunities in agriculture, medical field, IT, and this will be really helpful for the participant. And we will try to follow this everything and be whatever we can do. And I hope the participant will get benefited and they will try to follow this whatever good points you highlighted. So thank you very much, sir, for this nice presentation. Thank you, sir.